A very good morning to all of you. So, welcome again. And already we discussed about the light chapter and the main topics that what is light. Okay, already we discussed this chapter. What is light reflection? That is reflection topics. Already we discussed. Laws of reflection is also discussed. Image. What is image is also discussed. Image formed by a plane mirror is also discussed. What are the spherical mirrors, that convex and concave mirrors. Now, टुडे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स से। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व, मतलब जिन मिरर्स की सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व होती है। सपोज आप एक स्पून देखते हो, स्पून की सरफेस कर्व होती है। सो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ मिरर, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। प्लेन मिरर के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर? कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आउटसाइड में होती है, मतलब इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। यहाँ पे कोई रे पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट होगी। एंड कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो पॉलिश सरफेस होती है वो इनसाइड होती है। ओके, यहाँ पे कोई रे पड़ेगी और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होगी। So, reflecting surface is curved outward is called convex. Reflecting surface is curved inward is called convex. Diverging mirror, converging mirror. Okay? Here is the diagram. यहाँ आप देख सकते हैं we are having one principal axis. एक मिरर लिया है, उसमें हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, मतलब जो कि रेडियस को टच करते हुए सेंटर ऑफ सर्कल को टच करते हुए जा रहा है। इट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन joining the pole and the center of curvature is called principal axis. Now, pole is P. This is P. This is the center of curvature. This is P. Okay, this is the pole. The center of the spherical mirror. इस spherical mirror का जो center है उसको हम क्या बोलेंगे? P बोलेंगे. Now, aperture, that is M. and N. This is the aperture. It is the effective diameter of the spherical mirror. Diameter है spherical mirror का, उसको हम aperture बोलते हैं. Center of curvature is this C, the center of the hollow glass sphere which the mirror was a part. Okay. Now radius of curvature, center से लेके pole तक जितना distance है उसको बोलते हैं radius of curvature. The distance between the pole and the center of curvature is called radius of curvature. Then focus, that is capital F. Focus कहाँ पे मिलेगा? Center of curvature and pole के बीच में जो मिलता है वो क्या कहलाता है? Focus कहलाता है. The point on the principal axis where all the parallel light rays actually meet. यहाँ पे सारी light rays जो actual image बनेगी वो यहाँ पे बनती है, उसको हम focus बोलते हैं. And focal length, that is small f. The distance between the focus and the pole is called focal length. उसको हम बोलते हैं focal length. Now, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि एक कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर में कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग सपोज कौन कौन से पॉइंट्स को क्या क्या डिनोट कर रहे हैं। हमारा प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, एपर्चर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है एंड फोकल लेंथ क्या है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, relationship between focal length and radius of curvature. Radius of curvature और focal length के बीच में क्या रिलेशन है? Focal length equals to r by 2. Radius का हाफ होती है focal length. यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो this is the radius, this is the radius. Okay. अब focal length क्या है? Focal length इसका भी हाफ है, तो that means radius equals to focal length equals to radius divided by 2. Now, rules for making ray diagram by concave mirror. Concave mirror की हेल्प से कैसे हम रे डायग्राम बना सकते हैं? concave mirror आपको रूल्स पहले से पता है concave mirror क्या होता है? This is the concave mirror. A ray parallel to the principal axis will pass through the principal focus and after reflection. ये एक आपकी principal axis है, ये center of curvature है। एक रे आती है जो कि पहले आपके एपर्चर पर रिफ्लेक्ट होती है और जाती है फोकस से लेके चली जाती है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल बनाया जाए तो क्या होगा? इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन।
rules for making ray diagram by concave mirror. The ray passing through the principal focus of concave mirror will emerges parallel to the principal axis after reflection. प्रिंसिपल अगर रे पास करती है कॉन्केव फोकस से पैरेलल पास करती है, जब फोकस से पैरेलल पास करती है तो क्या होगा, वो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या रहेगी, पैरेलल में रहेगी. ओके. A ray of light passing through the center of curvature. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है of a concave mirror is reflected back along the same path as it is normally incident ray. अगर फोकल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो किस पे जाएगी, सीधे सीधे फोकस पे जाएगी और वापस उसी पे बैक पे जाएगी. रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज रिफ्लेक्टेड. अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होती है तो वापस से कहाँ पे चली जाएगी, इक्वल एंगल बनाते हुए वापस बाउंस बैक हो जाएगी. दीज आर द रूल्स फॉर मेकिंग डायग्राम, रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर. सबसे पहला केस है जहाँ पे रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की तो वो प्रिंसिपल फोकस से निकलेगी, और अगर रे पास कर रही है प्रिंसिपल फोकस से, मतलब रे यहाँ प्रिंसिपल फोकस से निकल रही है तो वो पैरेलल होते हुए प्रिंसिपल एक्सिस से निकल जाएगी. ओके. अगर रे पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है कॉन्केव मिरर के तो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी. ठीक है. ओके. नाउ अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आके इंसिडेंट होती है तो वापस से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एक एंगल बना के. ओके. दीज आर द रूल्स फॉर कॉन्केव मिरर. नाउ रे डायग्राम फॉर इमेजेस. अब इमेजेस कैसे बनते हैं रे डायग्राम में ऑफ कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर के इमेजेस किस तरीके से फॉर्म होते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे रखा गया हो. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा है कहीं दूर इन्फिनिटी में जिसकी कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं पता है, तो उसमें हमारी इमेज कैसे बनेगी. सो लेट्स सी ए डैश इज द ऑब्जेक्ट जो काफ़ी दूर कहीं है, वहाँ से रे आ रही है और डायरेक्टली एक प्रिंसिपल एक्सिस पे जा रही है, एक एपर्चर पे स्ट्राइक हो रही है और वो उसके बाद ये इमेज यहाँ पे बना रही है. तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो पोजीशन एट एफ, तो उसकी पोजीशन कहाँ बनेगी इमेज की, एफ पे बनेगी. एफ की एफ इमेज कहाँ पे बनेगी, हमारे एफ पे बनेगी. और उस इमेज का नेचर कैसा होगा, एक तो वो रियल होगा क्योंकि मिरर के इस साइड में बनेगी. दूसरी बात वो इन्वर्टेड होगी, मतलब जो इमेज है उसके अपोजिट होगी, इन्वर्टेड होगी, और उसका साइज बहुत ही छोटा होगा. एक्चुअल ऑब्जेक्ट से उसका साइज काफ़ी छोटा होगा. दिस इज द वे हाउ द इमेज इज फॉर्म इन कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अफार एट इन्फिनिटी पोजीशन. ओके. नाउ इन्फिनिटी पोजीशन में दीज आर द थ्री कंडीशंस. Image will be formed at F. The nature of image is real and inverted, and the size of is point size of highly diminished. Okay. Now, second, when object is beyond C. C is the center of curvature. C से थोड़ा सा पीछे हो अगर ऑब्जेक्ट. This is the object AB. Okay. तो इमेज कैसे बनेगी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से इमेज रेज निकलना स्टार्ट करेगी. एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और एक एपर्चर पे जाके स्ट्राइक करेगी. जब स्ट्राइक करेगी तो वापस से बैक होगी और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रही है वो दोनों जाके यहाँ पे मिलेगी. यहाँ पे मिली तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सारी रेज यहाँ पे आके मीट करती है तो वहाँ पे क्या बनती है, इमेज बनती है. तो यहाँ पे हमारी इमेज बनी, दैट इज ए डैश बी डैश. अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इमेज किस टाइप की बनी. सबसे पहले पोजीशन कहाँ पे है उसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है. नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब उल्टी है. साइज क्या है, हाईली डायमेंशन, मतलब बहुत ही छोटी साइज है. जो ऑब्जेक्ट है उससे काफ़ी छोटी साइज में हमें इमेज मिली. दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्केव मिरर एंड द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट सी से पीछे हो. ओके. अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी में ही रखा गया हो तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा हुआ हो तो कैसे हमारी इमेज बनेगी. तो सबसे पहले ध्यान से देखना कि ए बी है हमारा ऑब्जेक्ट है. ए से रे निकलती है,
बाउंस होके फोकस से लेके यहाँ चली जाती है, फोकस पे स्ट्राइक होते हुए यहाँ चली जाती है एंड उसी ए से दूसरी रे निकलती है और फोकस से जाके वापस से उस पर फोकस पे से जब जाएगी तो वो क्या करेगी, उसके पैरेलल में निकल जाएगी। हमेशा याद रखना जब फोकस पे स्ट्राइक होती है तो पैरेलल होके चली जाती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पहली रे इस तरीके से गई, दूसरी रे इस तरीके से गई और दोनों रे आके कहाँ पे मिलते हैं, ए डैश पे। जहाँ पे मिले वहाँ पे हमारी ए डैश बी डैश एक इमेज बनी। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमें मिलेगी और सेम साइज की होगी बट इन्वर्टेड होगी। लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशंस। पोजीशन इमेज की सी पे ही होगी, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। नेचर उसका रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल है इमेज इज रियल बट इन्वर्टेड। साइज कैसा है, सेम साइज है जैसा कि ऑब्जेक्ट का साइज है। ओके, सो दिस इज द वे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, the image is formed at C only. The nature of the image is real and inverted, and the size of the image is same as the size of the object. Now, when object is placed at F and C, जब object F और C के ऊपर हो तो हमारा object रहा है, ये रहा छोटा सा object, यहाँ पे F और C के बीच में बैठा हुआ है। ओके, अब कैसी इमेज बनेगी वो हमें देखना है। तो सबसे पहले when object is in between F and C, तो यहाँ से एक रे जाती है, ऑब्जेक्ट ए से जाती है और वो स्ट्राइक होके यहाँ पे चलेगी। वैसे ही सेम यहाँ से एक देखो, यहाँ ध्यान से देखना, और एक रे यहाँ पे इस तरीके से जा रही है। क्यों? क्योंकि जब लाइट ऐसे जाएगी तो ये इस तरीके से गई और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जाएगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो ऑब्जेक्ट से मिल रही हुई लाइट एक जगह पे मीट करेंगी, वहाँ पे हमारी इमेज बनती है। तो इमेज पोजीशन क्या होगी इमेज की, बियॉन्ड सी, सी से पहले बनेगी। दूसरी बात रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, इस केस में भी रियल और इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा साइज होगा, ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे एनलार्ज साइज होगा। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा साइज है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज when object is placed at F, जब ऑब्जेक्ट F पे रखा गया मतलब फोकस पे रखा होगा, तब कैसे इमेज बनेगी। फोकस पे रखा है, एक रे इंफिनिटी में चली जाती है, दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है वो भी इंफिनिटी में। मतलब इसमें हमारी पोजीशन इंफिनिटी है, इमेज इंफिनिटी पे किसी जगह पे जाके बन रही है, उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा, प्लस उसकी साइज हाईली डायमेंशन्ड होगी, मतलब हाईली एनलार्ज्ड होगी, काफ़ी बड़ी होगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इमेज का उतना ही वो साइज में बड़ा होगा। ओके, नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तब क्या होगा, तो हमारी इमेज अचानक से वर्चुअल हो जाएगी। अभी तक हम रियल इमेज का देख रहे थे, सिर्फ एक ही केस है इसमें जहाँ पे हमारी इमेज क्या हो जाती है, वर्चुअल हो जाती है। रिमेंबर दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन कि हमारे इस कॉनकेव पूरे उसमें सिर्फ एक ही पोजीशन है जहाँ पे हमारी वर्चुअल इमेज मिलती है। सबसे पहले ये एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक लाइट गई और रिफ्लेक्ट होकर फोकस से यहाँ पे गई, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गई। अब इसकी जो इमेज है बैक करते हुए जाते हैं इस तरीके से, फिर यहाँ पे बनती है, यहाँ पे मीट होती है इसकी इमेज। देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे जा रही है, ये इस तरीके से ऐसे जा रही है और यहाँ पे हमारी इमेज बनती है। ओके, तो पोजीशन इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है पोजीशन। नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब उससे अलग है पर इन्वर्टेड नहीं, इरेक्टेड है। साइज काफ़ी बड़ी है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इज प्लेस्ड एट in between P and F. So these are the images formed by a concave mirror, and we made how many images? Where we change the position till 6 times. सबसे पहले क्या था, सबसे पहले इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट था, तो इमेज इस तरीके से बनी। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी था, सी के पीछे था, फिर ऑब्जेक्ट सी पे आया, फिर ऑब्जेक्ट हमारा सी से कहाँ पे आया, सी और एफ के बीच में आया, फिर ऑब्जेक्ट एफ पे आया, फिर एफ के बाद एफ और पी के बीच में आया।
These are the 6 cases where image is formed. Only in this case image is virtual and rest of the image is real and inverted. Only in this case image is virtual and erected when object is at P and F. Now यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर, हमने ये तो देख लिया इमेजेस कैसे बनती है। अब हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर के क्या क्या यूजेज हैं। यूज इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सबसे पहले टॉर्चेस में यूज किया जाता है। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ पेशेंट्स। कॉन्केव मिरर यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। लार्ज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट इन सोलर फर्नेस। मतलब ये सारी चीज़ों में सबसे पहले टॉर्चेस में यूज़ होता है, फिर हमारे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं ताकि हमें इमेज काफ़ी बड़ी दिखाई दे, फिर हमारे शेविंग मिरर्स में यूज़ होता है ताकि इमेज काफ़ी बड़ी दिखाई दे, फिर ये कहाँ यूज़ होता है हमें कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस, जो सोलर फर्नेस में हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ तक हमने कॉन्केव मिरर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्वेक्स मिरर, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना इनफ होगा कि वी कम टू नो हाउ द इमेज इज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। ओके, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।